Hello everyone, my name is Gaurav Kumar and recently completed my MTech from IIT Delhi. So today we are going to start the periodic series of aptitude. So let's start with the question number first. Question number first is that please solve by your own, then see the solution of these questions. 25% are in a room, 15 of them play hockey, and 17 of them play football, and 10 of them play both hockey and football. Then the number of person, and neither hockey or not football is. So this is basically I asked about the number of people who are neither play hockey or not play football. So we can solve through by diagram. This is for the hockey, and this is for the football. This is for the hockey, and this is for the football. Okay. So given that in the question n of u means total number of कितना दिया हुआ है 25. So 25 and this video is recorded in English medium, so you can understand in both Hindi and English language. And number of कैंडिडेट जो हॉकी खेलते हैं उनकी संख्या कितनी दी हुई है, उनकी नंबर 15. एंड नंबर ऑफ पीपल्स हु आर ओनली प्ले फुटबॉल उनकी कितनी नंबर है 17. एंड एच जो दोनों खेलते हैं हॉकी एंड फुटबॉल उनकी कितने दिए हुए हैं 10. सो हॉकी खेलने वाले कितने हैं हमारे पास 15 एंड फुटबॉल खेलने वाले कितने हैं हमारे पास 17 एंड जो बोथ खेलते हैं वो 10. तो हम लोग को सबको एक फॉर्मूला पता है जो हम उसको कहते हैं एन एच यूनियन एफ. सो एन ऑफ यू प्लस एन ऑफ एफ माइनस एन ऑफ यू सॉरी एच इंटरसेक्शन एफ. यही होता है फॉर्मूला. तो हमें एन ऑफ यू पता है, एन ऑफ एफ पता है, एन ऑफ एच इंटरसेक्शन एफ भी पता है. इंटरसेक्शन मीन्स जो दोनों में दोनों खेल रहा है, जैसे हॉकी और फुटबॉल दोनों खेल रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे एन एच इंटरसेक्शन एफ मीन्स हॉकी एंड फुटबॉल कॉमन. सो एन ऑफ यू कितना दिया हुआ है हमें 15 प्लस 17 माइनस 10. तो ये हमारे कितने आ जाएंगे, ये आ जाएगा हमारा 22. अब हमें बोल रहा है जो नाइदर हॉकी नॉर फुटबॉल. ओके. तो नाइदर हॉकी और नॉर फुटबॉल को निकालने के लिए हमें क्या करेंगे जी टोटल नंबर ऑफ जो है टोटल नंबर ऑफ पर्सन जितने हैं उसमें से ये जो खेलने वाले हैं जो हॉकी एंड फुटबॉल खेलते हैं उनको माइनस कर देंगे तो हमारे पास नहीं खेलने वाले की संख्या आ जाएगी. तो 25 माइनस 22 इक्वल टू 3. सो 3 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. जो नंबर ऑफ पीपल हैं जो हॉकी भी नहीं खेलते हैं और फुटबॉल भी नहीं खेलते तो उनकी नंबर ऑफ पीपल कितने आ जाएंगे 3. Okay, easy to solve these questions. Come to the next question number second. Okay, this is the puzzle type question. If you find the relationship between them, then you have to solve this question very easily. How can we solve? You see the questions. If 137 plus 276 is equal to 435, if this is right or wrong? 137 plus 276, 76 13 17 10 1 2 1 3 8 413, but it is written at 435. So if you reverse the number 314, so this is also not true. So this is not the correct relationship between them. So how can we solve? If you plus 731 plus 672, देन क्या आ रहा है हमारे पास 213 7 3 10 एंड 7 6 13 8 14 1403. तो एंड इफ यू रिवर्स दिस नंबर so 137 276 13 1 4, so 413 and 413. So this is the right, but option is given that 1403. So option B is the right answer of these questions. Okay. In option you can also see this option of the option in the questions. Only for 1403 is matches with the answer. So only option B is the right answer of these questions.
कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें हमें क्या दिया हुआ है जी कि 5 स्किल्ड वर्कर्स कैन बिल्ड अ वॉल इन 20 डेज। ओके, सो 5, पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। 5 skilled worker can build a wall in 20 days and 8 semi-skilled worker can build a wall in 25 days and 10 in unskilled workers can build a wall in 30 days. So if a team has 2 skilled, 6 semi-skilled and 5 unskilled workers, how long it take to build a wall? So basically he asked about the time. Okay, so हम लिख सकते हैं 5 skilled workers build a wall in how many days? 20 days. Okay, so one skilled worker can build a wall in how many days? 1/20 into 5. ओके, सो ये कितना आ जाएगा हमारे पास? 20 into 5 100, 1/100 डेज। एंड यहाँ पे हमें फिर क्या दिया हुआ है सेमी स्किल्ड का। 8 सेमी स्किल्ड वर्कर्स कैन बिल्ड अ वॉल इन 25 डेज। तो वन सेमी स्किल्ड वर्कर कितने में बिल्ड कर लेंगे? देखो, वन सेमी स्किल्ड वर्कर कैन बिल्ड अ वॉल इन 1/25 into 8। सो 25 फोर जा 100, ये 200 हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, एंड हमारे ये भी दिया हुआ है जी कि अनस्किल्ड वर्कर की भी संख्या दी हुई है हमारे पास। तो 10 अनस्किल्ड वर्कर्स build a wall in 30 days. Okay, in 30 days. So one unskilled worker can build a wall in 1/30 into 10 to 300। तब हमारे क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है अब हमें हमसे? देखिए, टू स्किल्ड, टू क्या होना चाहिए? टू स्किल्ड, एस से डिनोट कर रहा हूँ स्किल्ड को, और 6 सेमी स्किल्ड, मतलब डबल एस सेमी स्किल्ड, प्लस कितना हो जाइए 5 अनस्किल्ड, मतलब यू और एस से मैं अनस्किल्ड को डिनोट कर रहा हूँ। तो इसका सिंपल सा सॉल्यूशन मैं निकालना चाहूँ तो इसका क्या आ जाएगा? 2 इंटू 1/, एक स्किल्ड वर्कर कितने करते हैं 1/100 डेज में? दो स्किल्ड वर्कर क्या करेंगे? 2 इंटू 1/100, 2 इंटू 1/100। और उसी प्रकार सिमिलरली 6 इंटू सेमी स्किल्ड, तो सेमी स्किल्ड हम लोगों ने कितना निकाला है? 200। ओके, एंड 10 अनस्किल्ड, सो 10 1/300। सो हमारे पास कितना आ जाएगा ये? इसका जब हम लोग एलसीएम निकालेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास नीचे, सॉरी 300, ये हो जाएगा हमारे पास 6, 125, 6, ये 9, और ये कितना आ जाएगा हमारे पास? ये 5। तो हमारे पास कितने आ जाएंगे? 200, सॉरी 20, 1 सेकेंड, ये थोड़ी सी हैंग कर रही है। 15, बिकॉज यहाँ पे देखो आप, इसके कितने आ जाएंगे? 15। ओके, सो 15, तो 1/15 कितने आ जाएंगे हमारे पास? 15 डेज। ओके, so 15 days is the answer. So option D is the right answer of this questions. Okay, come to the next question. In this question ask about the given digit 2, 2, 3, 3, 3 and 4 is the 4 times. How many digit 4 digit number greater than 3000 can be formed using this digit? Okay,
सो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका क्या बोल रहा है 3000 से ग्रेटर देन होना चाहिए, तो हम लोग 4 डिजिट का एक नंबर बनाते हैं और यहाँ पे 3 या 4 आ सकता है और यहाँ पे तो 110 पे क्या आ सकते हैं 2 3 4 भी आ सकते हैं, 10 डिजिट पे क्या आ सकते हैं 2 3 4 भी आ सकते हैं और यहाँ पे भी 1 डिजिट पे 2 3 4 आ सकते हैं। तो हमारे क्या मिलेगा 2 × 3 × 3 × 3 3 3 जा 9 9 3 जा 27 27 2 जा 54। ओके, बट सब यहाँ पे ये करके निकल जाएंगे तो क्या हो जाएगा, आंसर हमारी गलत हो जाएगी क्योंकि इनसे बोला जा रहा है इस सेलेक्टिव नंबर में से। ओके, 2 2 ट्रिपल टाइम्स 3 एंड 4 टाइम्स 4। सो ये हमारा रिपीट हो सकता है क्या, जैसे मैं एक एक्सेप्शनल केस बता रहा हूँ 3 3 3 3। देखो हमारे पास 3 टाइम्स ही 3 है, 4 टाइम्स तो 3 नहीं होगा, तो ये एक हमें एलिमिनेट करना पड़ेगा। ये एक हो गया, ये एक हम फॉर्म नहीं कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे 3 और 4 डाला हूँ तो लेकिन 3 3 ये 4 टाइम्स रिपीट नहीं कर सकते हैं। तो उस सिमिलरली आप यहाँ पे 3 फर्स्ट रख दो और 2 2 2, यहाँ पे कितना दिया हुआ है 2 टाइम्स ही 2 है, 3 टाइम्स 2 नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा एलिमिनेट हो जाएगा। ये एक और केस बन गया हमारे पास, ये केस नंबर 2, ये केस नंबर 1। ठीक है, ये केस नंबर 2, ये केस नंबर 1। और एक और केस बनेगा जिसमें हमारे पास हम कह सकते हैं कि अगर यहाँ पे 4 आ गया, चलो मान लिए, तो यहाँ पे 2 2 और 2। ठीक है, 2 2 और 2 ट्रिपल टाइम्स 2 नहीं है हमारे पास, तो ये केस नंबर 3। तो हमारे पास कितने केस ऐसे आए हैं जिसपे ये डिजिट फॉर्म नहीं कर सकते हैं, जो ग्रेटर देन 3000 तो हैं, बट क्या वो इस डिजिट से मैच कर रहे हैं, नहीं मैच कर रहे हैं। जो हमारे पास गिवन डिजिट है उसी से हमें 3000 से ग्रेटर देन बनाना है, तो उससे हमारे ये 3 केसेस हैं जो मैच नहीं कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा हमारे पास 54 - 3 51 is the right answer of this questions. Okay, come to the next question. Now the second question is, there are two candidates P and Q are in the election. During the campaign 40% of the voters promised to vote for P and the rest promised to vote for Q. However, on the day of the election 15% of the voters who had promised to vote for P instead voted for Q and 25% of the voters who had promised to vote for Q instead voted for P. And the condition क्या दिया हुआ है, P lost by 2 votes. So what was the total number of voters? तो इसे सॉल्व करने के लिए मान लो कि लेट टोटल नंबर ऑफ वोटर्स इक्वल टू x. ओके, एंड नंबर ऑफ वोटर्स he was supposed to get how much, कि कितना लेगा 40%. ओके, सो 0.4x हम लोग लिख सकते हैं। एंड नंबर ऑफ वोटर्स Q was supposed to get कितना, Q कितना लेगा, एंड द रेस्ट आर प्रॉमिस टू वोट फॉर Q मीन्स 0.6x। बट अब क्या हम कंडीशन दी हुई है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, हम लोग लिख सकते हैं ऑन इलेक्शन डे 1 लिखा गया। ऑन इलेक्शन डे क्या हुआ, P losses 15% of his supporters to Q. So 0.15, क्योंकि देखो 15% ऑफ द वोटर हु हैड प्रॉमिस टू वोट फॉर P इंस्टेड वोटेड फॉर Q। तो 15% ऑफ द वोटर थे वो क्या थे, जो कि प्रॉमिस तो किए थे कि देखो P को मैं दूंगा, बट वो Q में चले गए। तो 0.15 इंटू 0.4x हम लोग लिख सकते हैं, तो इसका कितना आ जाएगा 0.06x। और Q लॉसेस 25% of his supporter to P.
तो P कितना लॉस कर रहा है देखो यहाँ पे, एंड 25% ऑफ द वोटर्स वो हैड प्रॉमिस टू वोट फॉर Q इंस्टेड वोटेड फॉर P। तो 25% वो लूज किया, तो मतलब 0.25 इंटू 0.6x, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 0.15x। तो फाइनल वोट फॉर P कितना आ जाएगा हमारे पास, अब फाइनल वोट फॉर P हमारे पास कितना आ जाएगा, देखो पहले कितना था 0.4x माइनस 0.06x, क्योंकि ये हमें लूज हो गया, ठीक है। बट ये क्या हुआ जी कि Q लॉसेस 25% लॉस तो किया, बट P में ऐड हुआ ना। Q क्या बोला था जी कि मैं मतलब 25% ऑफ द वोटर्स हु हैड प्रॉमिस्ड टू वोट विद Q इंस्टेड वोटेड फॉर P, मतलब Q में तो लॉस हुआ, बट उसको वोट P पे गया, उसका वोट P पे गया, तो 0.15 हम लोग लिख सकते हैं, 0.15 प्लस में x, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 0.49x। सिमिलरली फाइनल वोट फॉर Q कितना आ जाएगा हमारे पास 0.6x माइनस 0.15x, क्योंकि देखो Q से लॉस हुआ था 0.15x, तो इसलिए माइनस में डिनोट किया, और उसके ऐड कितने हुए 0.06x, 0.06x, तो हमारे पास कितना आ जाएंगे ये हमारे पास 0.51x। तो अब एक और कंडीशन है, P लॉस्ट बाय 2 वोट्स, तो P लॉस्ट बाय 2 वोट मीन्स क्या हुआ, मीन्स द डिफरेंस बिटवीन Q एंड P इज 2। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, Q कितना है, Q माइनस P इक्वल टू 2, तो 0.51x माइनस 0.49x इक्वल टू 2, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 0.02x इक्वल टू 2। तो x को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2/0.02, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 100। ओके, तो हमारा क्या बोला, व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ वोटर्स, तो वोटर्स कितने आ गए हमारे पास a इक्वल टू 100, सो ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay, in this question says that the fuel consumption by the motorcycle during a journey while traveling a very speed is indicated in the graph below. The distance covered during the 4 lap of the journey are listed in the table. देखो यहाँ पे डिस्टेंस दिया हुआ है, यहाँ पे एवरेज स्पीड दी हुई है, और यहाँ पे फ्यूल कंजम्पशन कितने हो रहे हैं, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, 1 सेकेंड, इसको थोड़ा सा इसको यहाँ पे थोड़ा सा देखो, 15 पे है कितना 30, और 30 पे कितना है 65। मैं यहाँ पे टेबल एक ड्रॉ कर देता हूँ, उससे आपको समझ में आ जाएगी। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, फ्यूल कंजप्शन पर लीटर इक्वल टू 1 कंजम्पशन किलोमीटर लीटर, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक टेबल बनाते हैं जिसमें डिस्टेंस, स्पीड और कंजप्शन कंजप्शन इन किलोमीटर लीटर, और इसके क्या रहेंगे P Q R S। तो एक टेबल बना लेते हैं, उसके बाद पता चल जाएगा आपको कैसे करके निकालना है, ठीक है। तो P का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है हमारे पास 15, ये 75 Q का, और ये 40, और ये 10, और स्पीड हमारे पास कितना दिया हुआ है, स्पीड हमारे पास दिया हुआ है 15, ये 45,
ये 75 और ये हमारे पास कितना दिया हुआ है 10। और कंजम्पशन पर लीटर कितना दिया हुआ है कंजम्पशन, ये 15 पे कितना है, 15 पे है 60 और 45 पे कितना होगा जाएगा हमारे पास, 45 पे 90, यहाँ पे 60 और ये 90 90 45 पे कितना है, ये हमारा 45 पे हमारा 90 है, ठीक है। तो 45 पे हमारा 90 है और 75 पे कितना है 75 ही, और हमारा 10 पे कितना है 30। तो फ्यूल कंजप्शन कितना आ जाएगा, फ्यूल कंजप्शन इसका क्या हो जाएगा 1/60, इसका 1/90, इसका 1/75, इसका 1/30। तो इसका कितना आ रहा है हमारे पास, 1/60 करेंगे तो 0.016, इसका 0.011, इसका 0.013, इसका 0.033। तो 0.016, 0.011, 0.013, 0.033। तो सबसे लेस किस में लग रहा है हमारे पास, देखो हमारे पास क्यू में लग रहा है, क्योंकि 0.011 इस सबसे लेस है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा क्यू। तो क्यू हमारा क्या कर रहा है, सबसे लेस कंजम्पशन कर रहा है। कंजम्पशन क्या बोला जा रहा था हमारे क्वेश्चन में, वी कैन कंट्रोल फ्यूल कंजम्पशन पर किलोमीटर लीस्ट ड्यूरिंग द लैब इन क्यू। ओके, क्योंकि देखो क्यू में 0.011 आ रहा है। ओके, सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज क्यू। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो इस क्वेश्चन में कह रहा है जी कि 3 फ्रेंड हैं आर एस टी शेयर टॉफी फ्रॉम द बॉवेल। आर क्या कह रहा है 1/3 वो ले रहा है टॉफी बट रिटर्न 4 टॉफी टू द बाउल। ओके, एस देन टुक 1/4 एंड व्हाट वाज लेफ्ट बट रिटर्न 3 टॉफी टू द बाउल। टी took half of the remaining toffee but returned 2 toffee back to the bowl. If the bowl had 17 toffee left after this, how many toffee was originally in this bowl? देखो आप इसको सॉल्व करने जाओ उस लंबे प्रोसेस से तो बहुत टाइम लगेगा। इसका सबसे आसान तरीका है सॉल्व करने का। जैसे देखो आर अगर किसी भी चीज़ से हम लोग 1/3 लेते हैं तो वो 3 से मल्टीपल 3 से डिविजिबल जरूर होना चाहिए, ठीक है। तो 3 से कौन सा डिविजिबल है, देखो ऑप्शन ए तो 3 से डिवाइड नहीं होगा, ऑप्शन बी भी 3 से डिवाइड नहीं होगा, ऑप्शन सी देखो 48 डिवाइड बाई 3, 1 3 6 जा 18, तो 16 3 जा 18, तो ये ऑप्शन सही होगा और ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो कभी भी बोला जा रहा हो कि यहाँ से टुक्स क्या किया 1/3 ऑफ द पार्ट्स, तो 1/3 ऑफ द पार्ट्स तो कोई इसी चीज़ का पार्ट्स हम लोग लगा पाएंगे ना, जिसे 33 का लगा सकते हैं, 27 का लगा सकते हैं, हाँ जो 3 से डिविजिबल हो, ठीक है। तो कौन सा पार्ट जो डिविजिबल होगा 48, जिससे हम लोग वो 3 भागों में हिस्सा कर सके। 3 भागों में हिस्सा किसका हो पाएगा, जो 3 से डिविजिबल होगा। तो 48 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इजी। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एफ ऑफ वाई है जो मॉड वाई बाई वाई है एंड क्यू इज ए नॉन जीरो रियल नंबर, द एफ ऑफ क्यू एंड एफ ऑफ माइनस क्यू क्या होगा। तो हमारा गिवन है एफ ऑफ वाई इक्वल टू मॉड वाई डिवाइडेड बाई वाई। तो एफ ऑफ क्यू हम लोग लिख सकते हैं ऐसे ही, मॉड क्यू डिवाइडेड बाई क्यू, और एफ ऑफ माइनस क्यू हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस क्यू डिवाइड बाई माइनस क्यू। तो मॉड ऑफ माइनस क्यू क्या आ जाएगा, पॉजिटिव माइनस क्यू, और ये तो माइनस माइनस ही रहेगा तो ये ऊपर में चला जाएगा। तो अब हम लोग को क्या करना है, पुट द वैल्यू इन, जो पूछा जा रहा है हमसे एफ ऑफ मॉड ऑफ एफ ऑफ क्यू माइनस एफ ऑफ माइनस क्यू। तो एफ ऑफ क्यू माइनस एफ ऑफ माइनस क्यू, तो एफ ऑफ क्यू कितना है हमारे पास, मॉड क्यू डिवाइड बाई क्यू माइनस माइनस मॉड क्यू डिवाइड बाई क्यू, और ये मॉड में है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, क्यू डिवाइड बाई क्यू माइनस क्यू, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस क्यू डिवाइड बाई क्यू। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 2 मॉड क्यू डिवाइड बाई क्यू। तो क्यू से क्यू कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास क्या बचेगा 2। तो 2 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आया होगा और आपने भी मेरे तरह सॉल्व पॉज करके वीडियो को सॉल्व किया होगा। Thank you for watching this video and have a good day, and we will meet in the next PyQ series video. Okay.